ठीक है। Good afternoon, students. Good afternoon, students. CRs, please let me know if you can hear me. Okay, so let us start. Students, this is a revision lecture for all the SY students, all the divisions. Okay, we had many programs and functions, so many of you could not attend the lectures. So just to take revision, I have taken this lecture. So let us start. I'll be teaching you 4 important topics. I'll be teaching you 4 topics: working capital, capital budgeting, ratio analysis, and vertical formats. Okay, so we'll start with capital budgeting first. So what is capital budgeting? Capital budgeting is nothing but deciding which capital project shall company accept. So company may have various proposals to invest money in. So they have to be very careful, because capital budgets, or rather capital expenditures, are heavy expenditures. If company goes wrong, if the decision goes wrong, the company may have to wind up. Okay, it may incur huge losses, and these capital budgeting decisions are irreversible. Once you commit, you pay, you can't get it back. So you have to be very careful. So there are various methods of evaluating capital projects. Okay, there are in your syllabus, there are 3 traditional methods of evaluation and 3 modern methods of evaluating capital project. Okay, now on your scene you can see a question I have given. Okay, F Limited is considering the purchase of a machine. 2 models A and B are available, each costing rupees 2 lakhs. Profit before depreciation and tax are expected as follows. Okay, so total investment which company has to make is 2 lakh rupees, and yearly their profit before depreciation and tax is given to you. Okay, you can see 45,000, 80,000. These are profit before depreciation and tax for A, and for B 45, 45, 60, 90, 80 for B. Clear? And they have asked you to evaluate project by 5 methods, which includes traditional as well as modern techniques. Okay, so I'll be explaining you one by one. So, and I'll tell you how to solve this sum. Okay, the very first thing what you will make is a table of calculation of cash inflows. Okay, so I'll make a table here. Let me shift this formulas to the right.
it will be calculation of cash inflows first will be year column, then net profit before depreciation and tax column, then depreciation column will be there, net profit after depreciation but before tax, I'll write before tax column, then tax will be there, then net profit after tax column, then cash inflow column. Okay, so what I'll do it for project A. Okay, you can do similar calculations for project B as well. Okay, so I'll be doing it for project A. Year, I'll put years 1, 2, 3, 4, 5. Okay, profit figures and 6 also. Profit figures are also given to us. 45,000, 80,000. The question which you are looking at is a picture, so I cannot copy from those. I have to enter the values. 45,000 again, 60,000 and 40,000. Okay, these are my, you can see above table it is given profit before depreciation and tax. Okay, so we have to start with net profit before depreciation and tax. Then third column is depreciation. How to calculate depreciation, students? Depreciation is cost of the project minus scrap value upon estimated life. Of the project. Okay, so it will be cost is how much? 2 lakhs. Scrap is 0 and life is 6 years. Okay, so if I divide 2 lakhs by 6 years, we get 33,333. So I'll write 33,333 in all the columns. Okay, now you have to deduct depreciation from net profit before depreciation and tax to get net profit before tax figure. So it will be 45,000 minus 33,333. So I'm getting 11,667 as my profit for year on for project A. Same I will do calculation for remaining 6 years. Okay, now tax will be applicable. Tax rate, I'll give tax rate at 30%. In paper it will be given. Whatever percentage is given, you have to apply that percentage. Because time being I'm taking 30% as tax rate. So always calculate tax on net profit before tax value. Okay. So I'm getting it as 3,500. Okay. Then we'll do calculation for remaining values. Okay. I'll just make a round of 3,500, 14,000, 12,500, 8,500, 8,000 and 2,000. Okay. I'll just repeat once again. When you start solving this sum, the very first thing you have to do is you have to make one table of calculation of cash inflows. Okay, you have to look which profits are given. So above table you can see profit before depreciation and tax is given to you. So you have to start with that. So that will be your first column. Okay. So from that first deduct depreciation. Okay. So how to calculate depreciation? The formula for calculating depreciation is cost minus scrap upon estimated life. In this question, scrap value is not given. Okay. Divided by estimated life. So cost is 2 lakh rupees and estimated life is 6 years. So we get depreciation as 33,333
every year. So from net profit before depreciation and tax, deduct depreciation, you will get net profit before tax. Okay. In the question, tax rate will be given. Okay. So apply that tax on net profit before tax value. Okay. I'm getting these values 3,500, 14,000, 1,200, etc. Now, how to get net profit after tax? From before tax value, deduct tax. Okay. So I'll do it 11,667 minus 3,500. So this is my net profit after tax figure. Okay. So I'll do it similar calculation for all the remaining years. Okay. So last column, which is important column, is cash inflows. How to get cash inflows? Cash inflow is nothing but net profit after tax plus depreciation. I'll write it here. It is NPAT plus depreciation. Okay. So I'll add 8,167 plus depreciation 33,333. So I'm getting figure 41,500. I'll do it for all the remaining years. Okay. Is this clear, students? How to make this table? Okay. Now, in method ask, second profit payback period. So one more column we have to make, that is cumulative cash inflows. Cumulative cash inflows. This is required to calculate payback period. Okay. So how to get these columns values? You have to just go on adding every year's cash inflow. For year one, total cash inflows are 41,500 only. Okay, 41,500. That is year one. In year two, cumulated cash inflows will be 41,500 plus 66,000. Okay. So total cash inflows till the end of second year. Same way I'll do it for the remaining years. 107,500 plus 62,500. Likewise, I will calculate for the remaining years. Okay. Even if you add all the cash inflows, you'll get the same figure. Okay. So 3,01,500. Okay. So now we have cash inflows as well as cumulative cash inflows. Okay. Now we'll go for the first method, that is payback period method. Okay. I'll write here payback period method. I have the formula. I'll just copy it. So first method is payback period method. Okay, so formula for payback period method is, actually let me tell you what is payback period. Okay, this under this method we calculate the time period in which our initial investment is paid back or collected. Okay, so I have invested 2 lakh rupees, so I'll find out years or months in which my entire investment is paid back by that project. Okay, so payback period formula is complete years, how many I'll need, plus some fraction of years in months. Okay, the formula is complete years plus shortfall in initial investment upon next year's cash inflow into 12. I'll show you how to get these values. Okay. Now, first of all, we have to see in how many years I'm getting close to my total investment. How much is my total investment? 2 lakhs in this project. Clear? So
if you refer to cumulative column, in year 1, I have got back only 41,500. In year 2, I have got back 1,07,500. In year 3, I have got 1,70,000. So this is closest to my 2 lakh value. Okay, you can't go to next year because it surpasses the 2 lakhs figure. Okay, so just I'll put a box again. So I'll just make it bold that minimum 3 years will be needed. Minimum 3 years will be needed to calculate the to recover the value of money invested. So I'll put complete years as 3 years. Okay, so this is my payback period in years. Now I'll calculate how many more months I'll need. For that, formula is shortfall in initial investment. So till third year, I have recovered 1,70,000. So how much is the shortfall? The balance 30,000. Okay, so shortfall is the balance which is yet to be recovered. 30,000. Okay, and what is next year's cash inflow? It's 41,500. Clear? Into 12 into 12 you have to do. Now you will get answer in months. Okay, please calculate and post it. You can post in chat. The years 30,000 divided by 51,500 into 12. So I'm getting 8.67. So I can write 9 months. So my payback period is 3 years and 9 months. Is this clear, students? My payback period is 3 years, 9 months. So write once again 3 years and 9 months. That's it. We are done with the first method. Okay. Have you understood this, students? Okay. I'll just repeat this method if you want. First method is payback period method. See, students, for all the methods, you need to make tables. For each machine, you have to make a table. Okay. Now I'm doing it for project A now. Okay. Profits given are net profit before depreciation and tax. Okay, these are given, so I have written them. From net profit before depreciation and tax, first deduct depreciation. How to calculate depreciation? Formula is cost of project minus scrap of that project, scrap value at the end of the year, upon estimated life. Okay, so cost given to me is 2 lakh rupees. That how much I'm going to invest in that project. Okay, minus scrap is 0, not mentioned. Okay, upon estimated life. Okay, look at the years. 6 years cash inflow is given. So life in years is 6. Okay, this way you have to take it. Now divide these two, you get 33,333 per annum depreciation. So put it in depreciation column. Okay, now NPBDT minus depreciation, you will get net profit before tax. Okay, because depreciation is done. So now tax is left. So net profit before tax. Then calculate tax on these values. Net profit before tax values. Calculate tax at the rate of 30% or 40% or 50%, whatever will be given in the sum. Okay. Now deduct tax from net profit before tax value. You get net profit after tax value. Okay. After that, we have to get cash inflows. How to get cash inflows? The formula is net profit after tax plus depreciation. So add back depreciation, you will get cash inflow. Okay. After that, you have to find out cumulative cash inflows. Okay.
You have to calculate cumulative cash inflows. Okay. How to do that? You have to add all the cash inflows year wise. So year one it is 41,500. In year two, cumulative figure will be addition of first 2 years cash inflow, that is 41,500 plus 66,000. It comes to 107,500. In third year, cumulative will be addition of first 3 years. In year four, cumulative will be addition of first 4 years cash inflows. Okay. So same way calculate for all the 6 years. Okay. If you take total of that cash inflow column, it will be same as that of last figure in cumulative column. Clear? So this way you can check. Once that table is ready, for first method, that is payback period method, you have to do some markings. Okay. First marking will be against the figure in cumulative column which is closest to your cost of project. In this case, 2 lakh is my cost of project. So I am closest at third year, that is 1,70,000. So I have made it bold. Okay. And next marking will be in next year's cash inflow, 41,500. You can see it's made in bold. Okay. So these two markings are important. Clear? Now formula for payback period is complete years plus shortfall in initial investment upon next year's cash inflow into 12. So complete years means how far we have gone close to 2 lakhs in which year? Third year. So I'll write 3 years minimum I'll need, plus how much is the shortfall? To make up to 2 lakhs, I have reached only 170. So 30,000 is shortfall. So I'll write 30,000. Upon next year cash inflow is 41,500 that I took as a denominator. Okay. Into 12. So if you solve this fraction, 30,000 upon 41,500 into 12, you get 8.67 months. Okay. So you can round up that months. So your answer is 3 years, 9 months. Is this clear, students, now? Okay. So I'll go to next method. Next method is post payback profitability. Okay. I'll just move this payback period method to left side so that we will use the space for writing second method. Even I'll transfer the depreciation calculator. Okay. So second method now. Second method is post payback profitability. Student, this chapter is important for theory as well. Okay. Study all the methods which I am explaining now. Okay. So second method is post payback profitability. This method uses the criteria of how much you are earning once the payback is done. Okay, once you have recovered your 2 lakh rupees, how much you are earning. Okay, so for that formula is total cash inflow of that project minus initial investment. Okay, initial investment is also known as cash outflow or project cost. Clear, students? So total cash inflow, total cash inflows are 301,500 minus my initial investment or project cost or cash outflow is 2 lakhs. Okay. So answer is 1015. That's it. Okay. Have you understood the second method, students? Post payback profitability. Just type yes in chat box. Okay. So I'll go to next method. First, I'll just transfer this calculation to left hand side. Students, in exam, suppose if they give two models or two projects,
You have to do this calculation for both the projects and compare it and give your review. Like for payback period, for this machine it is 3 years 9 months, and suppose for next project it comes 4 years 5 months, then you have to write one single line that since payback period of project A is lesser, that is, it is paying us early, it should be selected. Like this, you have to give a line. In case of post payback profitability, you have to see which project is giving more profit. Now, this project A is giving you 1,01,500 profit. Suppose project B gives you 2 lakh profit. Then you have to make a line or state a line that company should go for project B as per post payback profitability, since it is giving higher profit. Okay, so after calculation you have to give this line that as per this method which project is better. Clear? Now I'll go to third method, average rate of return, also called as ARR. So I'll just write ARR. Okay. So formula is average profit after tax upon average investment into 100. Okay. So here we need two things. One, average profit after tax and average investment. So students, you can see we have a column, net profit after tax. Okay. You can just add all those values to get total profit figure. Okay. It is 101,502. Just add it by using sigma symbol. Okay. So total profit is 101,502. Okay, and we will divide this by number of years, that is 6. Okay, so divide by 6. So get average profit as 16,970. I'm getting average profit as 16,970. Students, I suggest you have your notebook and keep writing how I got the values. Okay, or you can just watch this again later on. Okay, so I got first value, numerator value, average profit after tax. How I got it? I took total of profit after tax for all 6 years and divided it by number of years, that is 6 years. So I got average profit after tax 169,17. Clear? Now I need average investment. Okay, so that I will solve it here. Average investment formula is cost of project minus scrap value divided by 2 plus working capital plus scrap. Okay, so let us see how what is our average investment. 2 lakhs. Okay, minus scrap value is 0, so it will remain 2 lakhs upon 2 plus working capital is 0, scrap is 0, so we get 1 lakh as our average investment. Students, have you understood how we got average investment? Follow this formula, average investment cost minus scrap upon 2. Okay, plus working capital plus scrap. Okay, so nothing is given, so cost divided by 2, so we get 1 lakh as our average investment. So I'll put that value in our formula. Into 100. Please calculate the percentage.
ये मेरा पेपर स्टार्ट होने से पहले तक रहेगा, एक दिन पहले आई विल रिमूव। हाँ, जो वीडियो लिंक है आपको मिला हुआ, वो पेपर के पहले दिन रात को मैं हटा दूंगा इसे। ओके, so that it is not misused by anyone. Okay, and students, don't worry, paper will be easy. Okay, not only my, all papers we set from your perspective. We don't want to fail anyone deliberately. Okay, लेकिन आप कुछ लिखोगे नहीं तो ही आप फेल हो जाओगे। मैं तो बोलता हूँ इसमें हमको ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। ओके, इफ यू स्टडी एटलीस्ट 2-3 hours a day, ये इजी चैप्टर है, इजी सब्जेक्ट है। ओके, ये लिंक अगले एक दिन पहले रात को मैं 12 बजे के बाद हटा दूंगा इसे। ओके ना? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड मेथड आल्सो। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, also known as accounting rate of return, annual rate of return, short form ARR here. Okay, so now I'll move this one to left side so that I can use the space for other calculation. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई सजेस्ट, जब आप ये फर्स्ट टेबल बनाओगे ना, हमेशा 2 पेजेस साइड बाय साइड, जो कंसेक्यूटिव पेजेस है वो यूज करना। तुम लोग फर्स्ट पेज मत यूज करना, मतलब जो राइट हैंड साइड का बचा हुआ पेज है वो मत यूज करना। इसके लिए क्या करना, 2 साइड बाय साइड पेजेस है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे लिखना प्रोजेक्ट ए, राइट हैंड साइड टॉप पे लिखना प्रोजेक्ट बी। दोनों टेबल साथ में ही बना देना। ओके, समझ रहे हो? फिर स्टार्ट करना फर्स्ट मेथड, दोनों का 2 पेज पे साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन होगा। ओके, एज पर फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, 3 मेथड ये 2 पेज में हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने 3 मेथड दिखाया ना, वैसे ही करना 2 पेज में, और हर मेथड के बाद एक लाइन डाल देना कि एज पर दिस मेथड दिस शुड बी सिलेक्टेड। ओके, 2 कंसेक्यूटिव पेजेस यूज करना, एक पेज पे प्रोजेक्ट ए लेना, बाकी के प्रोजेक्ट पेज पे प्रोजेक्ट बी लेना। ओके, तो आपका समय बचेगा इससे। हाँ, तो ये हाँ, सभी ने आंसर करेक्ट डाला है ग्रुप से, वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट 3 मेथड हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट 2 मेथड जो बचा है, फॉर दैट वी हैव टू अगेन मेक अ न्यू टेबल, लेकिन वो इतना बड़ा टेबल नहीं होगा, छोटा टेबल होगा। उसमें हम लोग को कैश इनफ्लो से स्टार्ट करना। ओके, तो नाउ आई विल रिमूव दिस टेबल। जो हमारा कैश इनफ्लो कॉलम है ना, वो हमें अभी काम आएगा। तो ये कॉलम जो है कैश इनफ्लो का, वो मैं वहां पर लेता हूँ, और अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कैश इनफ्लोज, क्योंकि सारे कनेक्टेड सेल्स है, तो 41,500 ईयर 1 का, ईयर 2 का 66,000। जीरो तो गो बैक, मैं पहले इसका वैल्यूज ले लेता हूँ फोटो, नहीं तो मैं चेंज कर रहा हूँ फिगर तो बाकी फिगर भी चेंज हो रहे हैं ना। तो मुझे कैश इनफ्लो गलत मिलेंगे फिर, तो मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ, और वो फोटो से मैं यहाँ पर कैश इनफ्लो प्लेस करता हूँ। ओके, आई जस्ट रिमूव दिस टेबल नाउ, ऑल द वैल्यूज। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट 2 मेथड है, यहाँ पर मुझे ईयर कॉलम चाहिए, उसके बाद कैश इनफ्लो कॉलम चाहिए, उसके बाद पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसको बोलते हैं पीवी फैक्टर। आपको क्वेश्चन में देखो सेकंड टेबल दिया है, हाँ, वहां से हम लोग को वैल्यूज लगेगी। ओके, तो पहले मैं कैश इनफ्लो फिगर्स देख लेता हूँ। 41,500, जो हमने कैश इनफ्लो पहले निकाला है वही यूज करना है यहाँ पर। हाँ, वापस कैलकुलेशन नहीं करना है। 66,000
62,500, 41,500, 52,000, 38,000. ओके, सो ये फोर्थ मेथड के लिए हम लोग को नया टेबल बनाना पड़ता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिट इंडेक्सिंग के लिए। हाँ, तो ये छोटा टेबल होता है, यहाँ पर जो हमने कैश इनफ्लो निकाला है पहले वाले टेबल में वही लेना है। उसके बाद हम लोग को पीवी फैक्टर लेना है। पीवी फैक्टर जो टेबल दिख रहा है तुमको दिया हुआ है ईयर और प्रेजेंट वैल्यू, वो लेना है हमें। हाँ, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.893 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 0.797, 0.712, फिर 0.636। जो आपको टेबल दिया रहेगा उससे ही वैल्यू यूज करना है। हाँ, अगर टेबल नहीं दिया रहेगा तो मैंने बताया किस तरह से क्लास में बताया हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, लेकिन हम लोग टेबल देंगे, सो डोंट वरी। 0.507। ओके, तो हमें पीवी फैक्टर मिला और कैश इनफ्लो दिया है, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैं ये टेबल बनाने के बाद। ओके, अभी ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है? सी, सपोज आपके फ्रेंड ने आपसे 1,000 रुपीज मांग लिया है, बराबर? तो आपने आपके फ्रेंड को 1,000 रुपीज दे दिया और उसने आपको 1 साल बाद वो 1,000 रुपीज दिया, तो कुछ फायदा है कि नुकसान है? इसमें आपका नुकसान है। क्यों? वेल, फ्रेंडशिप आपकी बरकरार रहेगी, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा, ये फायदा है। लेकिन आपका फाइनेंशियली क्या लॉस होता है? लॉस होता है इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, इन द मार्केट देर इज इन्फ्लेशन। what today you can buy with that 1,000 rupees you cannot buy after 1 year. आप आज जो चीज उस 1,000 में ले सकते हो वो आप 1 साल बाद नहीं ले सकते। दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट। हमारे प्राइजेस जो प्रोडक्ट के हैं वो बढ़ते रहते, सो इन्फ्लेशन। ओके, सो जनरल राइजिंग प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो इन्फ्लेशन फैक्टर को कंसिडर करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है। ओके ना? तो अभी आपको दिखेगा जो आपको इतने वैल्यूज दिख रहे 3,01,000 रुपया अपना टोटल हुआ था ना क्यूमुलेटिव, वो एक्चुअल में कितना होता है? ना व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो एंड पीवी फैक्टर गिवन टू यू। ओके, आई विल डू इट। 41,000 into 893। ओके, इट कम्स टू 37059। मतलब आपको 1 साल बाद जो 41,000 रुपया दिख रहा है 500, उसका वैल्यू एक्चुअली कितना है? सिर्फ 37,000। समझ रहे हो? तो दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग 12% ऑफ इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट कॉस्ट। क्लियर? अगर मैं इसका एडिशन करूं तो ये आता है 2,09,305। और हमने देखा कि पहले मेथड में हमने टेबल बनाया था तो वहां पर हम लोग को कितना टोटल कैश इनफ्लो दिख रहा था? 3,01,500, बराबर? देखो यहाँ पर करता हूँ। देखो कैश इनफ्लो का टोटल कितना दिख रहा है आपको? 3,01,500। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हम लोग कंसिडर करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट ओनली इन्फ्लेशन, कंपनी का एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि आई वांट एटलीस्ट 12% फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, देन दे यूज दिस एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। So this 12% may include inflation and other factors as well. Okay, it's up to the company what criteria it wants to set for itself to accept a project. Okay, तो जो 3,01,000 हम लोग को दिख रहा था एज कैश इनफ्लोज, एक्चुअली अगर उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू देखें तो इट्स ओनली 2,09,000। क्लियर? ओके, सो मॉडर्न टेक्निक यूजेस दिस टाइम वैल्यू टेक्निक टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जी अभी आपको जो 2,09,305 दिख रहा है वो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। हाँ, हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, फोर्थ मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, एनपीवी उसको बोलते हैं। द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज
ओके, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो, बराबर, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना आया, 209,305। ओके, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 2 लाख रुपए। ओके, तो हमारा कितना नेट कैश इनफ्लो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स ओनली 9305। क्लियर? देखो हम लोग को पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी हमने निकाला था सेम फॉर्मूला यूज करके, याद है ना? देखो 1,01,500 दिख रहा था, लेकिन उतना एक्चुअली प्रॉफिट है ही नहीं, बराबर। ये दिखा ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने बोल्ड करता हूँ, ये सेम फॉर्मूला था, लेकिन वहां पर क्या था, कैश इनफ्लो लिए थे। और अब हम लोग ये मेथड में क्या करें, एनपीवी में नेट कैश इनफ्लो ले रहे हैं आफ्टर डिस्काउंटिंग। क्लियर? आपका आंसर आ गया है 9305। okay, so if NPV is positive you can go for that project because it is repaying more than 12%. okay, अगर सिंगल प्रोजेक्ट दिया है आपको और आपका आंसर पॉजिटिव आया, then you can say since NPV is positive company can accept the project. okay, ये आपका फोर्थ मेथड हो गया। इसमें छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है, फर्स्ट टेबल बड़ा था, सिंपल था, उसका जो कैश इनफ्लो था वही फिगर्स हमने यहाँ पर यूज किया। सिर्फ आपको एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपको फिगर्स लेने हैं, मतलब कैश इनफ्लो के फिगर्स रिवाइज करने हैं आपको एज पर डिस्काउंटिंग फैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी बहुत सिंपल मेथड है। इनफैक्ट जो ऊपर हमने दो वैल्यू यूज किए वही यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं लिखता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ओके, यहाँ पर जो हमने यूज किया ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमको माइनस के बजाय सिर्फ डिवाइड करना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ पर अपॉन हो जाता है, ऊपर माइनस था यहाँ पर अपॉन हो जाएगा, दैट्स द चेंज। ओके, सो वैल्यू 209,305 upon 2 lakhs. If your answer is more than 1, you can accept the problem. Okay, I'll get the answer. आप भी निकाल लो इसको, आंसर को 1.04। ओके, सो अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर देन 1। ओके, सो बोथ द मेथड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके, and related also, values are same we are using. So these were 5 methods. Okay students, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो it will be for 20 marks. It may take time but it won't be that difficult. Okay, so do attend this type of question. Capital budgeting. Okay, so have you understood student? Just type yes in chat box, I'll come to know. Now we'll go to next question. I'll go to working capital. Okay, I'll go to working capital chapter. This is also a very important chapter. Okay. Now in this chapter we have taught you that how to calculate or estimate working capital required by the companies. Okay, so I'll just make a table for solution. Estimated estimation of working capital required. फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके,
तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मेट लगेगा पर्टिकुलर्स पीरियड units then rate and last amount. ओके स्टूडेंट्स, आपका यस मिला, थैंक यू। ओके, तो इस तरह से आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स, मेक अ टेबल स्टूडेंट्स अभी कुछ भी और डाउट्स रहेगा तो कैन कम टू कॉलेज टुमारो, आई विल बी टेकिंग फर्स्ट लेक्चर। ओके, वो डाउट्स के लिए रहेगा आपके, तो जरूर कॉलेज अटेंड करिए। हाँ, तो हम लोग को पर्टिकुलर्स में वी हैव टू स्टार्ट विथ करंट असेट्स। ओके, फर्स्ट आइटम विल बी योर स्टॉक। ओके, स्टॉक में 3 टाइप होते हैं आपके, एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ओके, 3 टाइप के स्टॉक। फिर होता है आपका डेटर्स, बराबर। फिर होता है बिल्स रिसीवेबल, फिर होता है आपका कैश एंड बैंक, apart from this you may have prepaid expenses anything given in advance तो उसके लिए हम लोग 1-2 जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। देन आई राइट टोटल करंट असेट्स। ओके, तो हमने करंट असेट ले लिए थे सारे, तो अब लेंगे करंट लायबिलिटी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेस करंट लायबिलिटीज। उसमें प्रोमिनेंट होता है क्रेडिटर्स, बराबर। फिर हो सकता है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये बेसिक्स है। इसके अलावा भी कुछ होगा तो हम लोग वो भी ले लेंगे। और ये 2 कॉलम में बना के रखता हूँ इन केस वी नीड इट। यहाँ पर आएगा टोटल करंट लायबिलिटीज, फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मेट है। तो अभी हम लोग सम्स पढ़ लेते हैं, तो अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके, increase the size of this question. I hope this is visible. हाँ, I'll discuss theory questions also if you want बाद में, लेकिन पहले sums कर लेते हैं डिस्कस। I'll read. Mrs. T Limited plans to produce 24,000 units during the year 16-17 and to sell them for rupees 300 per unit. Okay, तो कंपनी का प्रोडक्शन का
प्लान कितना है 24,000 का। ओके क्लियर। तो ये साल भर का आउटपुट है। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेट हाउ मच आउटपुट दे विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 month। ओके सो I'll make one working note। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाओ। ये वर्किंग नोट को 2 से 3 मार्क होंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। वर्किंग नोट 1 आउटपुट पर मंथ। ओके सिंपल है। अगर एनुअल आउटपुट 24,000 है तो उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको मंथली आउटपुट मिलेगा 2,000। लेकिन आप यूज करोगे 12,000, वर्किंग नोट नहीं करोगे तो वर्किंग नोट के 2-3 मार्क आपके चले जाएंगे। सो बेटर यू मेक अ वर्किंग नोट। ओके हर वर्किंग नोट के मार्क्स है, तो प्लीज डू मेक दिस वर्किंग नोट्स। नहीं तो आपको पता चलेगा कि आपको मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो वर्किंग नोट मिसिंग है आपके, स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है कि आपके वर्किंग नोट्स को मार्क्स है। प्लीज शो ऑल द वर्किंग नोट्स। ओके सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आउटपुट पर मंथ इज एनुअल आउटपुट divided by 12। Okay so it is annual output is 24,000 divided by 12, you get answer as 2,000 per month। okay समझ गए। हाँ हाँ now in question you can see cost structure of a product is given to you। okay आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है, वैसे का वैसे आपको वर्किंग नोट 2 बनाना है। अभी वर्किंग नोट 2 सेम वैसे ही करना है, सिर्फ एक एडिशनल कॉलम चाहिए हम लोग का। परसेंट का कॉलम दिया ना, वैसे हम लोग को अमाउंट का कॉलम चाहिए। ओके बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, फिर होता है प्रॉफिट, फिर सेल या सेलिंग प्राइस। ओके तो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है सब कुछ। 100% है 20, कॉस्ट है 80, 10, 20 एंड 50। ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं इसको वैल्यूज में फाइंड आउट करना है। इट वाज गिवन इन परसेंटेज बट यू वांट टू हैव इट इन रुपीज। याद रखो हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन इसको भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा जहां जहां अंडरलाइन है मैं वहां पर अंडरलाइन दिखाता हूँ। ओके तीनों कॉस्ट ऐड करके आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर एक अंडरलाइन होता है और नीचे प्रॉफिट के बाद अंडरलाइन होता है। हाँ स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग को इसको परसेंट का रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लुक एट द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या बोला था, कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल देम फॉर 300 पर यूनिट। मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितना है 300, तो यहाँ पर 300 लिखना। ओके फिर वन बाय वन जो भी परसेंटेज ये है ना, ये 300 पे कैलकुलेट करो। तो 300 का 50% कितना आएगा 150। कैसे पे कैसे हो रही है 300 इंटू 50% सिंबल दबाना, तो आपको 150 आंसर मिलेगा। लेबर कैसे करोगे 300 इंटू 20%। ओके ऐसे जो परसेंट है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। ओके सिंपल है, इसको भी 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 4-5 मार्क आपको इस 2 छोटी वर्किंग नोट्स में ही मिल जाएगा। ओके ना सो ओरली मत करना कुछ भी, शो एवरीथिंग ओके इन योर पेपर एज अ वर्किंग नोट। तो टोटल कॉस्ट हो गया 240, प्रॉफिट में हमारा 60 और सेलिंग प्राइस 300। okay students have you understood both these working note? Just type yes in chat box। okay अब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं। हाँ ये 2 वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इनमें ही तुम लोग को 5-1 मार्क मिल जाएंगे। आगे जाते हैं हम लोग।
Further details are available for the year 16 and 17. Okay. Okay students, got your message. First लिखा है working note 1. Operations are evenly spread throughout the year. Expenses accrue similarly. हाँ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है, इसका आपको कुछ करना नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन कि साल में सब कुछ रेगुलरली चल रहा है. ऐसा नहीं कि कंपनी 6 महीने चल रही है 6 महीने बंद, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू इंडिकेट. क्लियर? ओके. सेकेंड वर्किंग नोट है रॉ मटेरियल. हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं. रॉ मटेरियल से क्या बोला है हम लोग को? रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू 2 months सप्लाई इज स्टोर्ड इन द गोडाउन. ओके स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बोला एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब हम लोग को बिजनेस एवरीडे डे टू डे रन करने के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला. हाँ, ये इस कैलकुलेशन से आपको पता चल रहा है. व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, फिक्स असेट का कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होता है. इफ यू वांट टू टेक, इफ यू वांट टू बाय अ कार, यू नो द प्राइस. इफ यू वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, यू नो द प्राइस. ओके, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कितना पैसा लगने वाला है, ये हम लोग इजीली एस्टिमेट नहीं कर पाते. एंड फॉर दैट वी डू दिस कैलकुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. So in this chapter, what we learn that you have to estimate each and every item of current asset and current liability. मतलब मुझे स्टॉक के लिए, रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, डब्ल्यूआई के लिए कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, फिनिश गुड्स कितने महीने के लिए रहने वाले तो उसमें कितना पैसा ब्लॉक होगा. तो दिस वे यू हैव टू एस्टिमेट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ करंट असेट करंट लायबिलिटीज. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है, आप देखोगे बहुत ही इजीली आप कर पाओगे. ओके, तो 2 वर्किंग नोट हो गए हमारे. अभी हम लोग वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड, रॉ मटेरियल्स इक्विवेलेंट टू 2 months सप्लाई इज स्टोर्ड इन द गोडाउन. तो आपको रॉ मटेरियल जो है 2 महीने के लिए आपको रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा. ओके, तो पीरियड जो लिखा है वहां पर आप 2 लिखना. पीरियड कॉलम किसके लिए है? जो भी आपको टाइम पीरियड दे रहेगा, मंथ्स या वीक्स, वो लिखने के लिए है. ओके ना? और पूरे सम के लिए कोई भी एक ही क्राइटेरिया रखना. मंथ से तो सब कुछ मंथ्स में ही लेना. ओके, क्योंकि आपका आउटपुट जो निकाला आपने पर मंथ, वो भी पर मंथ ही है. समझ गए ना? ओके, तो हम लोग जो पीरियड है कॉलम है वो मंथ्स करके ही यूज करेंगे. ओके, अगर आपको वीक्स दिए तो भी हम लोग उसको मंथ में कन्वर्ट करके यूज करेंगे. समझ गए? So raw material equivalent to 2 months supply is required to be maintained in the godown. So in period I wrote 2 units per month. यहाँ पर मैं per month लिख देता हूँ. ओके, ऊपर हेडिंग में तो आपको ज्यादा समझेगा. So how much units we are producing? How many? 2000 per month. ओके, तो यहाँ पर लिख लूँ मैं 2000. ओके, अब थर्ड कॉलम है रेट का. तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है? कैन यू टेल मी? देखो, हमने जो नया वर्किंग नोट बनाया उसमें हमने रेट लिखा है, बराबर. वो इसीलिए बनाया था ताकि हम लोग को वैल्यूज मिले. हम लोग को परसेंटेज में दिया था, लेकिन हम लोग को परसेंटेज काम के नहीं. वी नीड वैल्यूज टू डू कैलकुलेशंस. ओके, तो रॉ मटेरियल का हमने रेट कितना निकाला? 150 रुपीज. तो आई पुट इट हियर 150. बस अभी तीनों का मल्टीप्लाई करना है और अमाउंट निकालना. ओके, तो डू द कैलकुलेशन. 2 into 2000 into 150. Okay, we are getting 6 lakhs as value. समझ रहे हो? सो मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए ही 6 लाख रुपए का जरूरत पड़ने वाला है. Are you getting it? So this way I'll predict each and every item of current asset and current liability. At the end I'll come to know कि मुझे नेट कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है. समझ गए? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, हाँ, सेकंड है वर्किंग प्रोग्रेस, लेकिन उसके पहले मैं आपको फिनिश गुड्स बता रहा हूँ. ओके, क्या बताऊंगा मैं? फिनिश गुड्स. ओके, फिनिश गुड्स का फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ. ओके, पहले फिनिश गुड्स कराता हूँ, फिर उसके बाद का लाइन में थर्ड वाला ले लूंगा थोड़ा. हाँ, WIP का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पहले बताना फिनिश गुड्स का. ओके,
तो फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 months प्रोडक्शन आर कैरीड इन स्टॉक, तो ये भी 2 महीने के लिए हम रख रहे हैं, कितना, 2 महीने के लिए। नेक्स्ट कॉलम है आउटपुट पर मंथ, कितना है, 2000, हमारा मालूम है, पहले ही हमने कैलकुलेट किया है। अब फिनिश गुड्स के लिए आप रेट कौन सा लोगे, तो फिनिश गुड्स मतलब क्या होता है, इट इज फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सारा काम हो चुका है। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है ना, वो यहाँ पर काम आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना है आपका, 240, समझे। तो फिनिश गुड्स के लिए कौन सा वैल्यू लोगे, 240, क्लियर। तो अभी हम लोग वापस मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, और आपको फिनिश गुड्स के लिए कितना अमाउंट चाहिए वो पता चलेगा, ठीक है। तो आपका फिनिश गुड्स में आपका 9,60,000 अमाउंट ब्लॉक होने वाला है, समझ रहे। तो इस तरह से हम सारे एसेट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल में हम लोग को कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम लोग जाते हैं थर्ड लाइन पे, जो कि WIP के लिए दिया है। ओके ना, थर्ड लाइन रीड्स एज प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 2 months, मतलब WIP का टाइम पीरियड दिया है 2 months, तो वापस मैं 2 months लूंगा, लेकिन हाँ ये हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम है यूनिट्स पर मंथ, तो उसका भी 2000 ही है हमारा मंथली आउटपुट, 2000 भी है। अब मेन चीज है रेट, तो भाई WIP के लिए रेट कौन सा लोगे, WIP मतलब काम चल रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ओके, लेकिन वो अभी तक फिनिश गुड्स बना नहीं है, बराबर, और ना ही वो सिर्फ रॉ मटेरियल है, क्योंकि उस पर कुछ काम हुआ है, मतलब इट विल बी समवेयर बिटवीन 150 एंड 240, बराबर। 150 तो बेसिक रॉ मटेरियल है, और 240 जो है फिनिश गुड्स है, लेकिन WIP लाइज इन बिटवीन दिस टू, समझ रहे हो। इसलिए मैंने उसको पेंडिंग रखा था, कि आपको समझ में आए कि WIP का मतलब क्या है। WIP मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, काम चालू किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो इसका रेट कैसे निकालोगे, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ अभी। हाँ, दिस विल बी वर्किंग नोट 3। स्टूडेंट्स वर्किंग नोट बराबर से करना, इनको ही दो दो, मतलब आधे मार्क्स तो इसको ही हो जाएंगे तुम्हारे, 6-7 मार्क्स, बराबर। हाँ, सो WIP का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट WIP रेट। हाँ, तो WIP मतलब काम चालू है, मतलब रॉ मटेरियल हम लोग को डालना है, बराबर। कोई भी रॉ मटेरियल डाले बिना आपका काम होता है क्या, नहीं। तो रॉ मटेरियल का फुल 100% एज्यूम करने का, ओके, प्लस लेबर का काम आधा हुआ ऐसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, 50%। लेबर का कितना एज्यूम करेंगे हम लोग, 50% काम हो गया। अगर पूरा होता तो फिनिश गुड बन रहा ना, तो हम लोग को मालूम नहीं कौन सा स्टेज पे है, तो वी प्रिज्यूम इट इज 50%। सेम वे ओवरहेड जो है उसका भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 50% काम हो गया है, समझे। तो अभी इन तीनों का एडिशन करके हम लोग को WIP का रेट मिलेगा। रॉ मटेरियल पूरा डालना पड़ेगा तभी काम चालू होगा ना, तो रॉ मटेरियल का पूरा 150 आई हैव टेकन। लेबर का कितना रेट है, 60, लेकिन वी प्रिज्यूम के आधा ही काम उसका हो गया, पूरा काम नहीं हुआ है, तो कितना ऐड करूंगा मैं, ओनली 30, समझे, 30 क्यों लिया। और ओवरहेड्स कितना लूंगा मैं, वो 30 का आधा, मतलब कितना लूंगा, 15। ओके, तो अभी ये तीनों को ऐड करूंगा, मुझे WIP का रेट मिलेगा, ओके, 195। स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी गॉट 195। WIP मतलब काम चालू है, मतलब इसमें सारे खर्चे आ रहे हैं लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन में। मटेरियल पूरा लेने का रेट, मटेरियल रेट 150 क्यों पूरा लिया, क्योंकि मटेरियल डाले बिना काम चालू नहीं होता है, तो उसको पूरा ही करना पड़ता है। लेकिन लेबर का और ओवरहेड्स का काम आधा हुआ ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उनका रेट सिर्फ आधा कर दिया। तो दिस वे यू गॉट 195। जस्ट टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन। तो अब मैं यहाँ पर रेट कौन सा लूंगा, 195, ओके। तो मल्टीप्लाई करके मुझे इसका भी वैल्यू मिल जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अभी अगले एडजस्टमेंट पे जाते हैं। देखो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एडजस्टमेंट हो गए।
हाँ, आगे जाते हैं फिफ्थ पे, कस्टमर्स गेट क्रेडिट ऑफ 1 मंथ एंड सप्लायर्स अलाउ क्रेडिट ऑफ 1.5 मंथ। कस्टमर मतलब कौन? जिसको हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, जिससे पैसा हम लोग को आना है, डेटर्स। ओके, कस्टमर मतलब डेटर, ये याद रखो। हाँ, ओके, और सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। ओके, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, वहां पर कंफ्यूज मत हो। ओके, लेकिन मुझे बताओ, अपने सारे कस्टमर्स डेटर बनते हैं क्या? नहीं, जिसको उधार पे बेचा है, जिसको क्रेडिट पे बेचा है, ओनली दोज कस्टमर्स बिकम्स अवर डेटर्स। जो कस्टमर कैश पे पैसा गुड्स लेके गए हमारे से, वो डेटर्स बनते नहीं है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग डेटर्स वैल्यू, you should take only units which are sold on credit basis। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो यूनिट्स लोगे ना 2000, तो 2000 लेने से पहले देखना कहीं पर आपको कैश सेल्स तो बोला नहीं है। ओके, सो फ्रॉम कैश सेल्स, फ्रॉम टोटल यूनिट्स रिमूव कैश सेल्स पोर्शन, और बचा हुआ यूनिट्स ही लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पहले डेटर्स का देख लेते हैं। डेटर्स के लिए कितना पीरियड बोला है हम लोग को? कस्टमर्स गेट क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, तो मैं पीरियड में 1 लिख, समझ गए? और थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिख रहा है, देखो, सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? सेवेंथ एडजस्टमेंट, 20% ऑफ सेल एंड 50% ऑफ परचेस आर मेड ऑन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। मतलब डेटर्स में 20% कैश पे बेचा है, मतलब 80% क्रेडिट पे बेचा है। तो 2000 का 80% ही लेना, 20% नहीं लेना, क्योंकि वो कैश बेसिस पे, जब कोई कैश पे लेके जाता है तो वो डेटर बनता नहीं है। तो 80% ऑफ 2000 विल बी 1600 यूनिट्स। समझा? तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का यूनिट लेते समय केयरफुली देखना सब में, कि कहीं कैश परचेस और कैश सेल्स तो नहीं बुलाया। कैश सेल्स आप डेटर से हटाओगे और कैश परचेस आप क्रेडिटर से हटाओगे। ओके, क्लियर? और डेटर्स के लिए, डेटर्स मतलब जिसको हमने गुड्स बेचा, तो हम लोग उसको सेलिंग प्राइस पे ही बेचते हैं, तो रेट कौन सा लोगे? 300। ओके, अभी तीनों को मल्टीप्लाई करो और अमाउंट लिखो। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सारे करेक्ट आंसर दे रहे, वेरी गुड। समझ गया डेटर्स? हाँ, उसी लाइन में फिफ्थ में सप्लायर्स का बोला है। सप्लायर मतलब कौन? अपना क्रेडिटर्स। सो गो टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है? सप्लायर्स अलाउ क्रेडिट ऑफ 1.5 मंथ, तो पीरियड में कितना लोगे? 1.5, पीरियड में कितना लेने का? 1.5। यूनिट्स में कितना लोगे? उन्होंने बोला कि 15% ऑफ परचेस आर ऑन कैश, तो 2000 का 15% माइनस करो, कितना बचता है उतना ही यूनिट्स में लो, मतलब 85%। ओके, मतलब 2000 इंटू 0.85, मतलब 85%, तो आता है 1700 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट्स कैसे है समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में। हाँ, तो इसकी वजह से सम गलत जा सकता। ओके, डेटर्स का 2000 यूनिट्स था, इंटू 80% लिया, हाँ, तो 1600 आ गया। वैसे ही क्रेडिटर्स के बारे में 2000 इंटू सिर्फ 85% लिया हमने, क्योंकि 15% क्या था? कैश बेसिस पे। ओके, तो आता है 1700। वेरी गुड, ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। हाँ, अभी क्रेडिटर्स के लिए कौन सा रेट यूज करोगे स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स के लिए कौन सा रेट यूज करोगे? क्रेडिटर्स से हम लोग क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल लेते हैं ना, तो रॉ मटेरियल का रेट यूज करना। कौन सा रेट यूज करना? रॉ मटेरियल का, समझ गए ना? ओके, तो 150 बराबर। आ गया 380 टू 500। देखो स्टूडेंट्स, जो करंट सेट्स का वैल्यूज है ना, उतना पैसा हम लोग को लगने वाला है, और जो करंट लाइबिलिटी का आइटम्स है, उतना हम लोग को उधार दूसरों से मिलने वाला है। तो इन दोनों का जो नेट अमाउंट है, उतना ही हम लोग को अरेंजमेंट वर्किंग कैपिटल के लिए करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग को बाहर से जितना उधार मिलेगा उतना अच्छा है अपने लिए, उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
समझ रहे हो ना? वेरी गुड. So we'll move on to next item. Sixth one, time lag. Time lag मतलब gap in payment of wages and overhead is half month. Okay, तो हम लोग पहले ओवरहेड्स वेजेस ले लेते हैं. बराबर. वेजेस के लिए कितना बोला है, ओवरहेड्स के लिए दोनों के लिए बोला है हाफ मंथ, तो 0.5 लेना. हाँ, हाफ मंथ मतलब 0.5. ओके, इसके लिए कुछ कैश परचेज ऐसा कुछ नहीं होता, तो पूरे 2000 यूनिट्स लेने पड़ेंगे. ओके, वेजेस के लिए लेबर का ही रेट यूज करना. वेजेस का, लेबर का रेट है 60 रुपीज. ओके, अब मल्टीप्लाई करके आंसर लो 60,000. ओके, ओवरहेड्स का बताओ मुझे, तुम लोग कैसे करोगे, क्या क्या लोगे, क्या इंटू क्या करोगे? पोस्ट करो ग्रुप पे या फिर आंसर पोस्ट करो ओवरहेड्स का. उसका भी पीरियड हाफ मंथ बोला है, तो 0.5. बराबर. यूनिट्स 2000 ही है. 2000 सब जगह कॉमन रहेगा, याद रखो. सिर्फ परचेस और सेल में केयरफुल रहेगा. हाँ, कैश परचेस का पोर्शन हटा दे. ओवरहेड्स का रेट कितना दिया है आपको? 30, तो 30 लेना. ओके. हाँ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ. ओवरहेड्स में अगर बोला कि आउट ऑफ 30 रुपीज 5 रुपीज इज डेप्रिसिएशन. सुन रहे हो मैंने क्या बोला? अगर 30 रुपीज ओवरहेड का है, उसमें अगर बोला 5 रुपीज इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन वी डोंट पे टू एनीवन. डेप्रिसिएशन हमको किसी को देना नहीं होता है. बराबर ना? तो वो आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता. हाँ, तो इन दैट केस जो रेट हम लोग ले रहे हैं ना 30 रुपीज, उसमें से वो 5 रुपीज डेप्रिसिएशन का हटा के फिर रेट लेना. समझ गए? ओके. बाकी और कहीं पर वो डिप्रेशन का कैलकुलेशन नहीं आएगा. क्लियर? तो अभी इसका कैलकुलेशन करो. ये सबने ग्रुप पे पोस्ट करेक्ट किया है. ओके, तो अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग. वेरी गुड, सभी ने करेक्ट कैलकुलेशन किया. वेरी गुड. ना, अभी और कुछ बचाएगा देख लेते हैं हम लोग. वेजेस एंड ओवरहेड्स हो गया. 20% ऑफ सेल्स एंड वो भी हो गया. कैश एंड बैंक बैलेंस, मोस्टली कैश बैंक आपको डायरेक्टली ही दिया रहेगा. 30,000. ओके, 30,000 वो लिख दिया हमने. बराबर. हाँ, मैंने एक बिल रिसीवेबल लिखा था. ओके, तो अभी इस सब में तो आया नहीं है. अगर इनकेस एग्जाम में वैसा आया तो क्या करना होता है, जो आपके डेटर्स है ना, उसमें से बोलेंगे कि हाफ ऑफ द डेटर्स एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स. तो पीरियड में 2 लिखना, 1600 का 800 बिल रिसीवेबल में डालना, रेट 300 ही लेना. समझ गया ना? मतलब सिर्फ जो डेटर के सामने उसका 2 टुकड़ा हो जाएगा, उसमें भी आपको पीरियड बोला रहेगा, यूनिट्स भी बोला रहेगा, और रेट 300 ही लेना. ओके, अभी इस समय वो नहीं है, तो अभी हम लोग नहीं करते. ओके, तो अभी हम लोग को टोटल लेना है करंट असेट्स का. इसका टोटल लेना है. हाँ, मतलब हम लोग को इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट है टोटल 28,50,000 की स्टॉक. मतलब सारे टाइप के स्टॉक, डेटर्स. डेटर्स में भी अपना पैसा ब्लॉक होता है ना, वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद देगा पैसा, तो हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे? तो ऐसा टोटल आपको 28,50,000 की जरूरत है. लेकिन अभी हम लोग करंट लाइबिलिटीज का टोटल लेते हैं, तो इतना हम लोग को बाहर से फाइनेंस हो रहा है, मतलब उतना हम लोग को डिले कर सकते हैं हम लोग. बराबर. तो 4,72,500. तो हम लोग को सिर्फ नेट अमाउंट का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा. समझ रहे हो? तो वी नीड टू अरेंज ओनली 23,77,500. So we can have arrangement with the bankers for overdraft for 24 lakhs. 28 लाख लेने की जरूरत नहीं है. समझे स्टूडेंट? ये सब समझ में आ गया सबको? जस्ट टाइप yes in the chat box.
2 मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ, जिसको नहीं समझा ना वो एक बार वापस से रिपीट देख लेना। हाँ स्टूडेंट्स, या फिर कल कॉलेज में आ सकते हो, मैं डाउट्स के लिए सेक्शन रखा हूँ। हाँ, फर्स्ट लेक्चर है शायद से एसवाई पे, तो डू कम। अभी नेक्स्ट क्या ले हम लोग, रेशियो लेके वर्टिकल ले लें, वर्टिकल स्टेटमेंट। मैं एक काम करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो में ऐसा सम लेता हूँ जिसमें हम लोग का सब कुछ कवर हो जाए, वर्टिकल भी कवर हो जाए और रेशियो भी कैलकुलेट हो जाए। ओके, आई विल डू दैट। हाँ तो यू कैन सी बैलेंस शीट इज गिवन। बैलेंस शीट हम लोग को ओल्ड फॉर्मेट में दिया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, मतलब अपना ओल्ड FYGC जो स्टडी कर रहे हो ना वो फॉर्मेट है। लाइबिलिटीज, एसेट्स ए और बी, बराबर। फिर नीचे दिया है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम लोग को वर्टिकली दिया है, तो उसको वापस से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके ना, लेकिन हम लोग को जो बैलेंस शीट दिया है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, और उसके बाद हम लोग को रेशियोज पूछा गया है। देखो मैंने 10 रेशियो दिखाया है। ओके ना, तो ये 10 रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट इस सब में बैलेंस शीट दिया है ना आपको, वैसा अलग से बैलेंस शीट के लिए भी आपको सम आ सकता है, हाँ सेपरेटली। ये तो मैंने रेशियो में कवर किया है, लेकिन अलग से मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। तो वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो भी आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट में, उसके बाद रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट पहले से ही वर्टिकल दिया है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट है उसको वर्टिकल बना लेते हैं। ओके, मैं इसका जरा थोड़ा व्यू बना कर देता हूँ, सिर्फ बैलेंस शीट कर देता हूँ, तो आपको दिखने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। आई होप अभी आपको बैलेंस शीट दिख रहा है बराबर से। हाँ, तो दिस इज द फॉर्मेट वर्टिकल बैलेंस शीट। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिख देता हूँ। जो आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, और राइट साइड में जो दिखा है मैंने वो वर्टिकल फॉर्मेट है। कॉमन साइज लिखा हूँ, तो अगर आपको कॉमन साइज आएगा तो इस तरह से आप कर पाओगे। ओके पर्टिकुलर्स ए और उसका परसेंटेज, बी उसका परसेंटेज। ओके, इसके बाद मैं आपको कंपैरेटिव भी दिखा दूंगा इसका कैसे करना है। पहले कॉमन सेट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अभी स्टूडेंट्स यू स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ फंड्स। जैसे हम लोग का असेट लायबिलिटी दो साइड होते हैं, वैसे ही वर्टिकल में सोर्सेस और एप्लीकेशन से दो साइड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखना सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसके अंडर आता है ओन फंड, मतलब खुद का पैसा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओन फंड में क्या क्या आता है। आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी रहेगी, आपको ये सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है और सॉल्व करनी है। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो आप लाइबिलिटी साइड में देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है आपको 3,30,000। ओके, और बी का तुम लोग कर दो, मैं सिर्फ ए का दिखा रहा हूँ। ओके, समझ गए। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया है तो 0। ओके, उसके बाद दिया है आपको रिजर्व्स, जो जाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो रिजर्व दिया है आपको 68,000, बराबर। उसके बाद दिया है P&L अकाउंट, तो मैं लिख लेता हूँ P&L अकाउंट। कितना वैल्यू दिया P&L अकाउंट का, 32,000। ठीक, 32,000। समझ गए स्टूडेंट्स। जो उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, माइनस लिखा है ना, ये आपका असेट साइड में होता है।
तो दिख रहा है आपको बीच में, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करके दिख रहा है 12,000। ओके, तो वो यहाँ पर आएगा -12,000, जस्ट पुट इट -12,000। ओके, अब ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो आपको ओन फंड मिलेगा। ओके, विल गेट ओन फंड once we add all these items. Okay, so it comes to 4,18,000. Clear, students? So when you are given a horizontal balance sheet and you are asked to prepare a vertical balance sheet, this is the format. आप कैसे स्टार्ट करोगे? You start with sources of funds. उसमें पहले ओन फंड मतलब ओनर का फंड, उसमें शेयर कैपिटल आएंगे, सारे रिजर्व्स आएंगे और उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका ओन फंड बन गया। एक मिनट में इसको जरा शिफ्ट करेगा मुझे। हाँ, ये बराबर हो गया ओन फंड। क्लियर? अब आता है उसके नीचे बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में आपके लोन्स आएंगे, डिबेंचर आएंगे। ओके, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लाइन इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे जैसे नीचे जाऊंगा मैं क्वेश्चन को नीचे ड्रैग कर लूंगा। तो डिबेंचर हम लोग को दिया है कितना, 2 लाख रुपीज। और लोन्स दिए देखो 1,40,000। ओके, अनसिक्योर्ड लोन्स में आता है, ध्यान रखो अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या आता है, एक पब्लिक डिपॉजिट्स, दूसरा लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। ये दो आइटम अगर लाइबिलिटी साइड में दिखे तो उसको अनसिक्योर्ड लोन्स में लेना। कौन से दो बोला मैंने? पब्लिक डिपॉजिट्स और लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स। इन दोनों को अनसिक्योर्ड बोलते हैं क्योंकि उनको हम लोग कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ओके ना? तो अभी हम लोग टोटल ऑफ बोरोड फंड ले लेते हैं। मैं खुद ही कर लेता हूँ टोटल 3,40,000। ओके, ये आपका एक साइड का टोटल हो गया, मतलब आधा काम हो गया आपका बैलेंस शीट का। ओके, वेरी सिंपल, नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा लगता है बड़ा समय, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मेट रेडी हो जाएगा जल्दी से जल्दी तो ये इजी है। ओके, तो अपना एक साइड कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग दूसरे साइड पे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आपने जो 7,58,000 रेज किया है वो आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, वो इम्पोर्टेंट। बराबर? तो वी स्टार्ट विथ फिक्स असेट। सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करोगे? फिक्स्ड असेट्स। ओके, तो आपको फिक्स असेट कौन सा दिया देखो। मशीनरी है और फर्नीचर। सो आई नीड 2 लाइंस हियर। I'll write machinery 6,47,000 और फर्नीचर है 50,000। ओके, total of this 6,97,000. Okay, after that we have next heading is investments. तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है असेट साइड में, देखो नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कीप इट ब्लैंक 0। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। अभी हमने जस्ट चैप्टर किया वर्किंग कैपिटल था, उसमें क्या क्या लिया था, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो करंट असेट जो जो आइटम थे हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ट्रैक कर लेता हूँ। तो करंट असेट्स में कैश एंड बैंक 32,000 दिया हुआ है, फिर डेटर्स है नीचे दिए 68,000, स्टॉक दिए 38,000 और भी एक दो आइटम है। सो आई जस्ट इंसर्ट 2 लाइंस हियर। अदर करंट सेट दिया है और बिल रिसीव दिया। पहले बिल रिसीव ले लेता हूँ। कितना दिया बिल रिसीव? 42,000। फिर दिया है आपका अदर करंट असेट्स, वैल्यू है उसका 18,000। ओके, सो आई थिंक वी हैव कंसीडर ऑल कैश, स्टॉक, अदर करंट असेट्स। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस एक रह गया।
one more item I need to write. Prepaid expenses. ये क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, एक रेशियो भी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5000 हो गया। अभी ये आपका करंट असेट्स आ गया, इसका टोटल ले लो करंट असेट्स का, जो आ रहा है 2,03,000। ओके, अब हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में होते हैं आपके। ओके, अभी सीएल करंट लायबिलिटी देखते हैं हम लोग वन बाय वन। ऊपर से देखो, इक्विटी नहीं, डिवेंचर हो गया, रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स दिया हम लोग को 48,000। फिर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, उससे पहले मैं बिल्स पेबल ले लेता हूँ 32,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। और फिर कैसा है बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रपोज डिविडेंड। बैंक ओडी वैल्यू है 22,000 और प्रपोज डिविडेंड 20,000। ओके, तो अभी इसका टोटल लेंगे हम लोग सेम उसी तरह से। 1,42,000। अभी जो सीए का टोटल है माइनस सीएल करके हम लोग को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो सीए 2,03,000 आया था, माइनस सीएल 142,000 हम लोग को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? अब जैसे हम लोगों ने सोर्सेस का भी टोटल लिया था, इसका भी टोटल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या ऐड करोगे आप? फिक्स असेट का टोटल प्लस इन्वेस्टमेंट का टोटल और वर्किंग कैपिटल टोटल। ओके स्टूडेंट्स, तो फिक्स असेट्स वैल्यू है आपका 697,000 प्लस इन्वेस्टमेंट था 0 प्लस वर्किंग कैपिटल है आपका 61,000। ओके, 7,58,000। देखो आपका सोर्सेज का भी टोटल 758 था, दिख रहा है ये। और अभी आपका एप्लीकेशन का भी टोटल 7,58,000, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हो गया ए का, वैसे आपको बी का कॉलम भी भरना है। जब ए का फिगर भरेगा तभी बाजू में बी का भी फिगर भर दे, समझ गए ना? तो एक ही टाइम पे आपका दोनों हो जाएगा। अभी समय कम है इसलिए मैं एक का ही बताया। ओके ना? अभी इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको कॉमन साइज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट? तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर लगेगा आपके साथ। ओके, जो हम लोग का सोर्सेज ऑफ फंड्स है आपको दिख रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड्स बराबर। हाँ, इसका जो टोटल है 7,58,000, इसको हमें 100 एज्यूम करना है। कितना करना है एज्यूम? 100। वी हैव टू एज्यूम टोटल सोर्सेस, उसको ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, उसको हम लोग 100 एज्यूम करेंगे। कितना करेंगे? 100 एज्यूम बराबर। अब 758 100 है, तो बाकी वैल्यूज कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको अमाउंट निकालना होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ओके ना? तो अभी इसके लिए शॉर्टकट भी है, अगर आपके पास कैलसी है तो मैं आपको बोलता हूँ वो फॉर्मूला यूज करो, तो आपको 2 मिनट में सारे परसेंटेज मिल जाएंगे। फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाय टोटल, जो हम लोग का टोटल है वो, इनटू जो आइटम आपको कैलकुलेट करना है वो लिखना, मतलब एंटर करना, और देन प्रेस इक्वल। कैलसी पे अभी ट्राई करके देखो, 100 डिवाइड बाय टोटल, मतलब यहाँ पर वैल्यूज भेजते हैं 100
डिवाइड बाय टोटल 7,58,000 इंटू हम लोग को कितना वैल्यू निकालना है, पहले 3,30,000 देखा था, 3,30,000 है पहला, और फिर इक्वल साइन दबाया है। ओके, तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो ये आप कैलसी यूज करके करना। ओके, ये फर्स्ट आइटम हो गया। ये जो आंसर आएगा वो आपको परसेंट में लिखना है। समझ गए? तो मैं इसका कैलकुलेशन करके देता हूँ। 100 डिवाइड बाय 7,58,000 इंटू 3,30,000, आपको आंसर आ रहा है 43.53। समझ गए? बना दिया। ओके, इसी तरह से आप बाकी का कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, 100 डिवाइड बाय 7,58,000 इंटू, जिसका वैल्यू आपको निकालना है आ रहा है 8.97। ऐसे ही आप बाकी लोग का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? कैसे यूज करना तुम लोग इसके लिए। और ऐसा अगर दो का जन का बैलेंस शीट दिया है, ए और बी का, तो सेम वे ए का कैलकुलेशन, सेम वे बी का कैलकुलेशन। ये बड़ा सम है तो इसलिए ये 20 मार्क्स के लिए इंडिविजुअल सी बैलेंस शीट भी आ सकता है। है ना? सिर्फ कॉमन साइज करो या कंपैरेटिव करो। ओके, समझा स्टूडेंट्स कैसे करना है आपको ये? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो पे जाए अभी। सर वी गो टू रेशियोज। इफ यू अंडरस्टूड दिस वर्टिकल बैलेंस शीट, अभी हम लोग रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आपके पास वर्टिकल बैलेंस शीट भी है और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी है, बराबर? तो वी कैन गो फॉर रेशियो एनालिसिस। ओके, मैं एक काम करता हूँ, जो बैलेंस शीट हमारा है ना, वो स्क्रीन पे साइड बाय साइड लिख देता हूँ, मतलब बना अरेंज करता हूँ ताकि तुम लोग को एक ही स्क्रीन में सब दिखे। मुझे मालूम है आपको पूरा बैलेंस शीट एक साथ नहीं दिख रहा तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस शीट दो टुकड़े में साइड बाय साइड ले लेता हूँ। हाँ, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। गिव मी 2 मिनट्स, आई डू इट। जैसे समझना इजी नहीं है तुम लोग के लिए। वी सजेस्ट दैट प्लीज डू अटेंड लेक्चर्स। लेक्चर्स में सब इजी वे पे जाते हैं हम लोग। एक मिनट। हाँ, तो आपके पेज से जाते हैं हम लोग। ऑनलाइन हम लोग ज्यादा टाइम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अभी एग्जाम है तुम्हारा, बहुत सारा प्रोग्राम्स की वजह से तुम लोग का मिस हो गया बहुत कुछ। ओके, तो क्योंकि तुम लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, तो इसलिए ऑनलाइन लेक्चर लिया हूँ मैं रिवीजन के लिए। ओके, हाँ, सो नाउ आई विल अरेंज एवरीथिंग। गिव मी 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है। बैलेंस शीट का फर्स्ट साइड जो है सोर्सेस, वो एक जगह पे दिख रहा है, उसके बाजू में क्वेश्चन के, और उसके राइट हैंड साइड में एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दिख रहा है, बराबर? तो सारी चीजें आपके सामने है। ओके, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रेशियो कैलकुलेशंस।
ओके ना, तो अभी हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन चालू करते हैं। ओके, सबसे पहला रेशियो दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसा है, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला है ना। तो आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है, उसमें सब कुछ दिया है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1 लाख दिख रहा है आपको। हाँ, तो 1 लाख आपको फॉर्मूले आने चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में सब कुछ दिया है तो आपको इजी हो जाएगा। अपॉन नेट सेल्स 2 लाख, हाँ सेल्स का फिगर दिया आपको इंटू 100। ओके, इंटू 100, आपको आंसर निकाल सकता 50%, बराबर 50%। समझ गए कैसे निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ट्रेस करो उसको। अपॉन नेट सेल्स, सेल्स से 2 लाख इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट्स। इस सेम वे आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोला नंबर 2। ओके, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, बराबर। सभी वैल्यू डालो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो सब में दिया है आपको 42,000, बराबर। लास्ट में लास्ट फिगर अपॉन 2 लाख इंटू 100। ओके, इसका परसेंटेज निकालो कितना है, 42,000 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 21%। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का साइज बढ़ाओ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, फिर आपके पास कैलकुलेशन की जगह कम हो जाता है ना। तो ये फर्स्ट 2 रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे ट्रांसफर कर देता हूँ और हम लोग अगला वाला कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड रेशियो कौन सा बोला है आपको, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। थर्ड है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल। टू का मतलब होता है अपॉन, तो फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिए इसे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा। देखो सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7, कितना है 20,000। ओके, एक्चुअली ये दो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अलग अलग लिए है, इसलिए एक काम करो आप लोग, वर्किंग कैपिटल का ही रेफर करो, ये इनकम स्टेटमेंट का क्लोजिंग स्टॉक मत रेफर करो। 38,000 दिया है। ओके, 38,000 मैंने आपको कंबाइन कर दिया दो सम, इसलिए जरा फिगर्स अलग है, बट टिकट फ्रॉम द बैलेंस शीट वैल्यू। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक है 38,000 और वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना है 61,000 इंटू 100। ओके, तो इसका भी कैलकुलेशन करो, 38,000 डिवाइड बाय 61,000 इंटू 100, 62%। तो दिस इज क्वाइट हाई परसेंटेज। स्टॉक इतना पाइल अप नहीं होना चाहिए, so it is inability of company inefficiency to sell or clear its stock. Okay, so around 30%, 20% is okay, 60% is too much stock lying in the godown. Okay, so this was third formula, stock to working capital ratio. Okay, I'll go to next one now. Okay, answers posted are correct in the group, very good। मैं इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ।
एंड में मैं तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट के लिए सब एक जगह पे ला के देता हूँ, ओके ना। अभी तुम लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी फोर्थ है करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। सो वर्किंग राइट हैंड साइड में देखो करंट असेट का टोटल कितना है अपना 2,03,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना है, एक सेकेंड, हाँ करंट लायबिलिटीज का टोटल है अपना 1,42,000, ओके, ऑन 1,42,000, ओके। तो इसका कैलकुलेशन करो 2,03,000 डिवाइड बाय 142,000 1.43, ओके। और इससे आगे is to 1 लिखना होता है आपको, हाँ is to 1 सफिक्स करना होता है। दिस इंडिकेट फॉर 1 rupee ऑफ करंट लायबिलिटी यू हैव 1.4 rupees of current assets, which is a good sign, not rather good. It should be at least 2. The standard current ratio is 2. For quick ratio, it is 1:1 standard. For current assets, that is current ratio, standard is 2:1. मतलब आपका current assets आपके current liability के डबल होना चाहिए minimum, okay. So on as per that criteria, this company is not that liquid. बराबर, सबने बराबर आंसर पोस्ट किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट जाए, नेक्स्ट है क्विक रेशियो, ओके। तो नंबर 5 क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ओके ना। क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक असेट कैसे मिलेंगे हम लोग को, तो स्टॉक में से रिमूव, सॉरी करंट असेट में से रिमूव स्टॉक and remove prepaid expenses, okay, you will get quick assets, okay. Same way from current liabilities remove bank order, okay, minus bank OD, okay. So this way you can get quick assets and quick liabilities. तो हमारे पास current assets जो है वो थे 2,03,000 बराबर, 2,03,000. From them, from that figure we remove stock 38,000 and remove 5,000 prepaid, okay friends. Same way, how to get quick liabilities from current liability. So current liability total was 1,42,000 minus bank OD. Bank OD is how much? 22,000. Okay. So this way you will get value of current assets, quick assets and quick liabilities. Okay. So let me calculate 2,03,000 minus 38,000 minus 5,000. Okay. I got quick assets. Quick liabilities 1,20,000 if I minus it. That's it. Now solve it. 160 upon 120. 1.33. Okay. Yeah, correct. Okay, so we got fifth answer as well. I hope you are getting it. बाकी लोगों का स्टेमिना खत्म हो गया, बहुत सारे कम हो गए. Okay, so this is clear now. So I'll go to next one, 6. I'll just shift this to other place. अच्छा मैंने 4th वाला कॉपी नहीं किया, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो. हाँ. Okay, now 6th one, debtors turnover ratio. Formula is credit sales upon average of debtors plus bill receivable.
ओके, तो क्रेडिट सेल्स वी प्रिज्यूम जो सेल्स दिया है वो पूरा क्रेडिट सेल्स है. ओके, वी प्रिज्यूम दैट अपॉन एवरेज ऑफ डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल. तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल देखो असेट साइड में करंट एसेट्स में डेटर्स है 68,000 एंड बिल रिसीवेबल 42,000. अभी एवरेज का मतलब क्या है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना होता है. तो आपको 2 साल का डेटा रहेगा ना, डेटर का और बिल रिसीवेबल का, तो उसका आप एवरेज कर सकते हैं. लेकिन अभी हमारे पास डेटा 2 साल का नहीं है, ये 2 कंपनी का है. हाँ, तो 2 साल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल ले लेंगे. हाँ, वही एवरेज पढ़ेंगे. 68 प्लस 42 होता है 1,10,000. ओके, सो गेट आंसर ऑफ दिस इज इन टाइम्स. ओके, मतलब आपके रिसीवेबल्स के 1.8 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स आपका सेल्स है, क्रेडिट सेल्स. ओके, क्लियर. हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सेम इसी तरह से होगा. सेल्स के बजाय क्या लोगे आप, परचेस लोगे. डेटर्स और बिल रिसीवेबल के बजाय आप क्या लोगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. हाँ स्टूडेंट्स, वो तुम लोग खुद से करो. मैं आगे जाता हूँ फिर. ओके, अब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा दो. मैं पहले इसको शिफ्ट कर लूँ. मैं इसको जरा नीचे डाल देता हूँ. ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर है 8. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला है earnings before interest and tax EBIT upon capital employed into 100. ओके, फॉर्मूला सब मैंने दिया हूँ क्लास में. ओके, आई होप यू हैव दैट फॉर्मूला. ओके, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इनकम स्टेटमेंट में जाओ, तो हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स है. अभी इंटरेस्ट का फिगर तो हम लोग को मालूम नहीं है यहाँ पर कितना है. ओके, तो वी प्रिज्यूम हम लोग ईबीटी से ले लेते हैं. अगर एग्जाम में ये पूछा है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दे विल गिव यू दैट ईबी वाला फिगर. ओके ना. तो मैं अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैलकुलेशन करता हूँ. 60,000 जो रेशियो पूछा है उसका डिटेल्स आपको सब में दिया रहेगा. हाँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट. अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका टोटल बैलेंस शीट का टोटल कितना था. आपका टोटल बैलेंस शीट का 7,58,000. 7,58,000. ओके, इंटू 100. कितना कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स, कितना आता है. 60,000 divided by 7,58,000 into 100, around 8%, 7.9%. समझ गए स्टूडेंट्स. हाँ, नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड. ओके, मतलब शेयर होल्डर्स को कितना मिल रहा है रिटर्न्स, वो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है. हाँ, तो पहले इसको शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा, ये स्लाइड में डाल देता हूँ. अभी शेयर होल्डर्स को कौन सा इनकम मिलता है, तो जो आफ्टर टैक्स रहता है दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स. तो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, या ओन फंड भी बोलते हैं हम उसको. ओके ना, इंटू 100. ओके, इंटू 100. क्लियर. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर है हमारे पास कितना है, 42,000 अपॉन ओन फंड. बता मुझे बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल लेटर ए 4,18,000 दिया है. 4,18,000
into 100. Okay, do the calculation, get the percentage. Yeah, जो आंसर डाल रहे हो बराबर आ रहा है आपका सारा. So 42,000 divided by 4,15,000 into 100. 10.04%. मतलब 10% owners are earning from this business. Okay. हाँ. Then last ratio है stock turnover ratio. So इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ. पहले इसको शिफ्ट कर दो मैं जरा. ओके, लास्ट रेशियो है. ऑलमोस्ट वी आर डन. और 10-15 मिनट में अपना लेक्चर हो जाएगा. बहुत मैंने आपको बिठाया है यहाँ पे. ओके, सो लास्ट वन इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. ओके, तो आपको COGS दिख रहा है. इनकम स्टेटमेंट में देखो सेंटर में कितना है, 1 लाख रुपीज अपॉन एवरेज स्टॉक. हाउ टू गेट एवरेज स्टॉक? वेरी सिंपल. एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ओके, यहाँ पर आएगा डिवाइड बाय 2. ओके, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय. तो COGS के इधर देखो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है. 10,000 ओपनिंग है और 20,000 क्लोजिंग है. तो 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2. सो 15,000 आपका आंसर है. बराबर. तो ये वहां ऊपर यूज कर लो. 1 लाख डिवाइड बाय 15,000. ओके, तो आपका आंसर आता है 1 लाख डिवाइड बाय 15,000 6.67. ओके, स्टॉक टर्नओवर दिखा था कि आप आपका स्टॉक कितने बार साल में बेच चुके हो. हायर द बेटर. मतलब ये दिखा रहा है कि आप अराउंड 6 बार अपने आपका स्टॉक बेचा है. ओके, यू आर एबल टू सेल योर स्टॉक 6.67 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर. बराबर ना. आपको एक साइकिल में अगर 1 लाख रुपए कमा रहे तो इसने कितना कमा रहे यार, 6 लाख कमा रहे. ऐसे तो जितना टर्नओवर ज्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है बिजनेस के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, बैलेंस शीट भी दिखा दिया, रेशियो भी दिखा दिया. इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल दिखाऊं एक सम? वैसे ही आपके सामने फॉर्मेट है ही. डू यू वांट टू गो फॉर दैट? ये देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का सम है और उसके रेशियोज भी पूछे हुए हैं. तो ये भी हम लोग कर सकते हैं अभी इफ यू वांट. ओके, यस या नो बोल दो. इफ यू कैन सॉल्व दिस ऑन योर ओन तो वेल एंड गुड. तो कर ले फिर ये वर्टिकल. चैट में डाल दो आपको चाहिए कि रुक जाए यहाँ पे. ओके ओके, चलो आई विल टीच. ओके, when you want to convert horizontal income statement into vertical, what you do, start with, मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ. Vertical revenue statement. Okay, particulars, amount in rupees, amount in rupees. Okay, always begin with sales. Okay, सबसे स्टार्ट करोगे किससे? सेल्स के साथ. कितना दिया है? 60 lakhs.
उसके बाद है लेस COGS. Okay, under COGS will cover mostly all trading account items or other production related items. Okay, COGS. So you can have a look at the question. You can chat in the box which are COGS items. Okay, opening stock बराबर जो प्रोडक्शन रिलेटेड है वो सारे खर्चे COGS में आएंगे. ओपनिंग स्टॉक इज 2,30,000. एड परचेसेस 55,70,000. डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब परचेस के ऊपर कोई खर्चा है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी इधर आएगा. कैरेज इनवर्ड रहेगा तो भी इधर आएगा. ओके 70,000. फिर और कोई प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है तो आप देख सकते हैं मुझे जाके. नहीं और कुछ नहीं है. तो यहाँ पर फिर इसका टोटल लेते हैं हम लोग 58,70,000. इसका टोटल है 58,70,000. ओके इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे. लेस क्लोजिंग स्टॉक how much this 3,55,000. 3,55,000. तो अब हम लोग को COGS मिलेगा इसका नेट अमाउंट. ओके 55,15,000. ओके तो अभी सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. ओके तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर. इसके बाद reduce the size of font. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अभी हम लोग एड ऑपरेटिंग इनकम आता है लेकिन यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है. ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्लूड आइटम्स लाइक बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट. तो उसमें से कोई भी नहीं है. तो स्ट्रेट वे गो टू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा आपका जो रेगुलर बिजनेस से खर्चे हैं जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस. ओके सो ऑफिस के अंदर हम लोग कवर करेंगे आइटम्स लाइक सैलरीज ऑफिस एक्सपेंस. ये दो आएंगे ना. salaries are 78,000. Office expense 38,000. Selling and distribution expenses तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हम लोग को वो ले लेंगे. एक काम करता हूँ मैं इनका टोटल ले लूँ. जैसे ऐड देंगे फिर नीचे और स्क्रॉल करने के लिए फॉर्मेट नहीं मेरे पास. लेकिन जैसे मैंने ऑफिस के दो आइटम बताए वैसे आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग बनाओ. हाँ तो इन दोनों का टोटल कितना आता है 66,000 बराबर. नेक्स्ट होता है फाइनेंस एक्सपेंस. Under finance, we cover all interest cost. Okay, discount allowed. These are covered under finance expense. So here we'll have 48,000 interest. Only one item is there. 48,000. Okay. So these three are operating expenses. इन तीनों का टोटल हम लोग बाहर ले लेंगे. टोटल है इसका 2,30,000.
तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट साइड में. ओके, तो विल कॉल दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट. ओके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसमें ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं, मतलब पीएनएल में क्रेडिट साइड में जो है ना वो. हाँ, इंटरेस्ट दिया हम लोग को 15,000. जस्ट राइट हियर ओनली. इसमें डिविडेंड आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आ सकता है, बराबर, जो क्रेडिट साइड में पीएनएल पे 15,000. ओके, so we add these two items. This is net profit before tax. Net profit before tax. Okay, from this we'll subtract tax, less tax. Tax हमको दिया provision for tax 45,000. Okay, now deduct it from net profit before tax value. We get 2,25,000 as net profit after tax. आपका और उसका प्रॉफिट फिगर सेम आना चाहिए एंड में. नेट प्रॉफिट मतलब आपने कुछ मिस नहीं किया. आफ्टर टैक्स यू हैव अकाउंटेड फॉर ऑल दैट. ओके स्टूडेंट्स, देखो उनका भी 225 है, हमारा भी 225. सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. ओके, तो दिस इज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. तो ये भी एक सम आ सकता है अलग से आपको. ओके, लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा तो 10 मार्क के लिए होगा. पूरा पूछा इसके साथ कंपैरेटिव कॉमन साइज पूछा तो आप कर सकते हो. इसको अगर कॉमन साइज करना है, ये जो हमने किया हाउ टू कन्वर्ट कॉमन साइज. इस सेल में क्या होता है, जो सेल्स है उसको 100 लेते हैं. जैसे बैलेंस शीट में टोटल को हमने 100 लिया, हियर वी हैव टू टेक नेट सेल्स एज 100. नेट सेल को हम लोग 100 लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली अगर 60 lakhs is 100, 230 is how much. Same way we have to calculate for all the other values. Okay, I'll write it here. Right side में लिखता हूँ, formula will be 100 upon net sales into the item which you want to convert. Okay, then equal. इक्वल के बाद आपको आंसर मिलेगा, वो लिख लेना. उसके बाद डायरेक्टली इफ यू आर यूजिंग कैलसी, डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू डाल देना कैलसी पे और इक्वल दबा देना. डायरेक्ट नेक्स्ट वैल्यू इक्वल, ऐसा कैलसी पे इजीली हो जाएगा. ओके, आई विल डू इट हियर. 100 divided by 60 lakhs into PIT. Okay, सेम वे आप सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो. इस तरह से. क्लियर. अगर आपको रेशियो भी पूछा, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वर्टिकल फॉर्मेट एंड देन कैलकुलेट द रेशियो. ओके, अभी जो पिछले समय मैंने सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट थे 10 वो दिखाए हैं. यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इवन फॉर दिस. Any other doubt students? Please put in chat box. अभी जो sums थे जो तुम लोगों को आने चाहिए
ओके, बेसिक्स आई हैव टॉट यू। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन कम टू लेक्चर टुमारो, ओके, with all your doubts. I'll address those doubts and all those queries, okay. Okay. कंपैरेटिव ट्रेंड हमने सब सम्स कवर किए हैं हम क्लास में। किसी बस अगर नोट्स नहीं है तो कल आ जाओ, आई ट्राई टू गिव यू जेरोक्स अगर चाहिए तो, किसी से लेके सीआर से वगैरह, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी, आपको ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए लेक्चर चाहिए क्या? इफ यू वांट आई कैन कीप अ लेक्चर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फॉर थ्योरी क्वेश्चंस आई वुड से जो चैप्टर्स के मेन मेन पोर्शंस है वो तुम लोग करो, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस क्या है उसके, व्हाट द okay, mean you're saying yes for a financial accounting on Tuesday you want? Okay, okay, okay. तो एक काम करते हैं हम लोग, ट्यूसडे को एक एफए का लेक्चर ले लेते हैं, ओके। सो इन दैट आई मे सॉल्व सम ओल्ड पेपर, उसमें कुछ वेरिएशन है वो भी दिखा दूंगा मैं, ओके ना। मंडे चाहिए तुम लोग को? बताओ मुझे एग्जैक्टली कहाँ, मंडे चाहिए ट्यूसडे चाहिए? तो एक दिन में ले लूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम्स में, मतलब जो बाकी चैप्टर पूरा कवर कर लेगा ऐसे सम्स ले देता हूँ, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ओके, थियरी क्वेश्चंस के लिए व्हाट आई डू, मैं 10-12 क्वेश्चंस जो लगता है इम्पोर्टेंट है, ओके ना, तो वो आपको मैं सीआर को दे देता हूँ, तो सीआर विल पोस्ट देम ऑन द ग्रुप, ओके, दैट वी कैन डू, ओके। और सम से कोई डाउट्स है तो प्लीज कम टू लेक्चर ऑन मंडे, कल ही है अपना लेक्चर, तो कल आ जाओ। हाँ, मैंने बोला ना, थियरी क्वेश्चंस मैं सीआर को देता हूँ, क्वेश्चन बैंक छोटा, हाँ, वो पढ़ो बराबर से, ओके ना। ओके, सो shall we end the meeting now? So was it helpful? You can do more practice sums at home. आप बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो और उससे थोड़े सम और प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं आ रहा है तो आप कल आ जाओ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कभी पॉसिबल हुआ तो ले लूंगा और एक लेक्चर वेडनेसडे को मेरा। ओके ओके ओके, so I'll end the meeting now, okay, thank you so much for being here. Yeah, yes, I'll give, I'll send it to CR, okay. Okay, okay, see you students, bye, take care.